Good morning, students. Welcome to the fourth lecture of your physics chapter number 4, moving charges and magnetism. And in the last class, we had discussed Biot-Savart laws and its application on infinitely long straight current carrying conductor. Today, we will apply Biot-Savart law to find out an identity of magnetic field for a circular current loop. Okay, now it has got two situations when the point of interest is on the axis of the current carrying loop, and second is when it is at the center of current carrying loop. तो सेकंड वाला इजी है, उसको हम पहले करते हैं when magnetic field at the center of a current carrying loop, okay. So suppose there's a current loop, let me draw it. Suppose there is a current carrying loop, it's a circular loop, and this is the center of the current carrying loop. Okay, now the current I is flowing in this current carrying loop. We have to find out the magnetic field, the value of magnetic field B at the center of this current loop because of the whole loop. Okay, now let me remind you, Biot-Savart law applies to a very small current element, है ना. Biot-Savart law कहाँ अप्लाई होता है? आइडियल, हमने जो करंट एलिमेंट बोला था ना, स्मॉल लेंथ, it's a vector quantity, ideal, and its direction is in the direction of current. Okay, ideal. तो हम Biot-Savart law से हम एक स्मॉल सेक्शन पे निकाल सकते हैं, बट उसको यूज़ करके हम इंटीग्रेट करके हम पूरे लूप में भी निकाल सकते हैं. तो लेट अस डू समथिंग. सपोज आई कंसिडर अ पॉइंट, a very small length dl, okay, and the current is flowing in this direction, and its distance from the center is a, the center is O, suppose its distance from the center is a, okay, and it is a vector quantity, suppose. Okay, so now what will be the direction of this magnetic field? डायरेक्शन निकालने के लिए हमको फिर से वही राइट हैंड स्क्रू रूल है ना. अभी मुझे अपने जो थंब है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखना है. तो करंट अभी हमने देखा कि क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आई एम टेकिंग दिस क्लॉकवाइज करंट. तो डायरेक्शन इस पॉइंट में, डायरेक्शन यहाँ पे इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी है ना. तो आइडियल का जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगा? इट विल बी अ टेंजेंट, इस पॉइंट से टेंजेंशियल करंट रहेगा. सपोज मैं इसको, ओके, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी टेंजेंशियल. ओके, सो मैंने इसमें यहाँ पे थंब रखा और देखा मेरा कर्लिंग ऑफ हैंड, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग inside, the curling of hand is going inside. The direction of the current here will be inwards, the direction of the current will be inwards. Okay, so the entire loop can be divided into large number of dls. Okay, है ना, छोटे छोटे हिस्सों में पूरे लूप को मैं बांट सकता हूँ, तो लार्ज नंबर ऑफ dl. अभी मैं इसका एक छोटा जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ dl वो निकालता हूँ, और सारे dl के लिए मैं जब उसको निकाल के उसको ऐड कर दूंगा या इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरा मिल जाएगा. ओके, सो अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ, अकॉर्डिंग टू Biot-Savart लॉ, dB ये कितना है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट एलिमेंट है I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, I dl साइन थीटा अपॉन
r square. Now theta is the angle between the current element and the position vector, जिससे हमको theta is the angle between the current vector and the position vector. अभी पोजीशन वेक्टर और करंट वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री. ओके अच्छा, ये केस अगर मैं dl यहाँ पे लेता, सपोज यहाँ पे dl अगर लेते तो ये डिस्टेंस तो यही रहता है ना, और एंगल कितना होता, अगेन इट विल बी 90 डिग्री. अगर मैं यहाँ पे लेता सपोज, तो अगेन डिस्टेंस सेम रहता और एंगल बिटवीन दिस विल बी 90 डिग्री. तो सब जगह 90 डिग्री है, तो साइन ऑफ 90 डिग्री. तो अगर मैं इसके लिए अगर इस dl के लिए अगर हम निकाल दें तो ये dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू dl साइन 90 अपॉन यहाँ पे ये जो हमने डिस्टेंस लिया है वो a लिया है, तो a स्क्वायर. a इज़ द रेडियल डिस्टेंस और सब जगह वो a ही रहेगा, तो a स्क्वायर. ओके, सो द फील्ड एट पॉइंट O पॉइंट्स नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, इनसाइड है. ओके, so the direction of dl is along the tangent, so dl is perpendicular r. Consequently the magnetic field at the center O due to this current element is this. okay, या फिर मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर, I dl अपॉन a स्क्वायर. अब मुझे टोटल अगर इसका निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेट कर दूँगा. इंटीग्रेट इसको किए तो इसको भी कर दिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB विल बी इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर. ओके, ना इसमें इस सिचुएशन में आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, क्या क्या चेंज नहीं हो रहे हैं. देखिए म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और करंट इसके अंदर स्टेडी फ्लो होगा तो करंट भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा. व्हाट एल्स इज नॉट चेंजिंग इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ द करंट लूप, है ना, ये भी चेंज नहीं हो रहा है. तो ये सारी की सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी. तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dl. ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटीग्रेशन ऑफ dl. ओके, हाँ चाहिए, या मैंने स्मॉल i लिया है तो इसको भी स्मॉल i ही कर देते हैं. ओके, I dl. ओके, नाउ dl कितना, एक स्मॉल टुकड़ा है इसके सरकमफरेंस का, है ना, इस सर्कुलर लूप के सरकमफरेंस का स्मॉल टुकड़ा है. तो अगर मैं सब कुछ जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, इसका सरकमफरेंस मिलेगा, इस सर्कुलर लूप का सरकमफरेंस मिलेगा. और सरकमफरेंस क्या है इसका, 2 पाई a. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे मिलेगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इंटू 2 पाई a. ओके, तो अब ये a और ये a कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया. तो मुझे यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड मिली म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई a. ये हुआ टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप, है ना. क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a, वेयर a इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर करंट लूप. ठीक है, तो दिस इज प्रूव्ड. इसको प्रूव करने में हमको कोई ज़्यादा परेशानी की
ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसको आपको बायो सेवर्ट लॉ के ओरिजिनल वाले में रख देना है। डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी, अगर द करंट इज क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन इज इनवर्ड, और करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो क्या होता, डायरेक्शन वुड बी आउटवर्ड्स। ओके, सो दिस इज द रिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। पार्ट ए कंप्लीट। अब पार्ट बी में जाते हैं। इसमें एक चीज़ बताना मैं छोड़ दिया था, उसको भी हम बता देते हैं यहीं पे, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये आगे आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इजी होगा। सपोज दिस फॉर्मूला इज वैलिड इफ देयर इज ओनली वन कॉइल। ओके, अगर एक ही सर्कुलर लूप है तो दिस इज द फॉर्मूला। बट सपोज ये मल्टीपल लूप्स हैं, ऐसा कोई अपने को मिला जिसमें ये n टर्न्स ले लिया, n नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें। ओके, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। ये सर्कुलर है ना, सर्कुलर। अगर n इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तब उस केस में होगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई ए, तो वही रहेगा, इनटू n हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बी फॉर n टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इसके सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ये वैल्यू रहेगा। ओके, now we'll look at the second case. In the second case is magnetic field on the axis of a circular current loop. Okay, उसको समझने से पहले हमको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेट अस सी दैट कि अगर मैं इस सर्कुलर लूप को, इस सर्कुलर डब्बे को मैं मानूं कि दिस सर्कुलर लूप। ओके, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, सेंटर से जो एक लाइन पास हो रहा है, सेंटर से जो एक लाइन पास होगा, ये उसकी एक्सिस होगी। ओके, अगर ये सर्कुलर लूप है तो ये एक्सिस हो गई उसकी, है ना, ऐसे ये एक्सिस हो गई। और इस एक्सिस के किसी एक पॉइंट में, है ना, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, एक्सिस के किसी पॉइंट में यहाँ पे मुझे बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर लूप इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये निकालना है। अगर ये सर्कुलर लूप है तो उसके एक्सिस के किसी पॉइंट में मुझे निकालना है। तो व्हाट यू आर सीइंग, ये सर्कल इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ओके, ये आपको समझना होगा कि दिस इज़ लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और ये एक्सिस ऐसा है, और ये पॉइंट जो है इस एक्सिस में एट ए डिस्टेंस आर, ये पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ, I will say this is at a distance of s। मैं इसको, इस डिस्टेंस को क्या लेता हूँ, s लिखता हूँ। ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से अगर इसके टॉप से देखा जाए तो इस पॉइंट से ये डिस्टेंस है। ओके, है ना। नाउ इस लूप की पहली बात कर लें, इसका जो रेडियस है वो a है, इसका सर्कुलर लूप का जो रेडियस है वो a है। ओके, क्लियर है। ओके, और करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना। मेरा डायरेक्शन अगर मैं इसको इधर से इधर करता हूँ तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। और फिर इस पॉइंट पे मैं एक लेंथ ले लेता हूँ dl, एक लेंथ लिया मैंने dl। ओके, एट द टॉप मैंने एक लेंथ ले लिया dl। तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अगर करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी कमिंग आउटवर्ड्स, है ना। तो इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन है आउटवर्ड्स। ओके, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट अगर एक यहाँ पे मैं dl लेता हूँ, ओके, तो इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन क्या है, ये यहाँ से निकला तो यहाँ से ये अंदर गया। ओके, तो इस पॉइंट में करंट का डायरेक्शन है इनवर्ड्स। ओके,
द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस. ओके ओके, तो इस पॉइंट में इट इज़ कमिंग आउटवर्ड्स, इस पॉइंट में इट इज़ गोइंग इनसाइड. ओके, डायमेट्रिकली दो अपोजिट लेंथ मैंने ले लिया. ओके, अब थोड़े से हम इसमें कंस्ट्रक्शंस करते हैं. ओके, नहीं, अभी और चीज़ समझना है ना. व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड एस, है ना. व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड आई डी एल एंड एस. ओके, अब ये मैं बोलूँगा ये एंगल बिटवीन आई डी एल एंड एस इज 90 डिग्री. तो आपको इससे तो दिख ही नहीं रहा कि ये 90 डिग्री है ना. ये तो किसी एंगल में दिख रहा है, बट उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से करंट बाहर आ रही है. ओके, द करंट इज कमिंग लाइक दिस. ओके, और ये डी एल ऐसा है. ओके, करंट ऐसे आ रही है और ये जो है ऐसे पॉइंट कर रहा है. तो अगर मैं इसको ऊपर से देखता हूँ, ऊपर से देखूँगा तो इट विल बी 90 डिग्री. ओके, ऊपर से मैं अगर देखता हूँ तो ये 90 डिग्री है. करंट इस पॉइंट से आइडियल करंट जो है ये ऐसे बाहर आ रहा है और ये देखिए ये पॉइंट है इसके एक्सिस में. तो ये ऊपर से देखता हूँ तो ये मुझे 90 डिग्री दिखेगा. अच्छा, ये सिर्फ इसी पॉइंट पे नहीं, किसी भी पॉइंट पे ये 90 डिग्री होगा, है ना. डी एल और एस के बीच का जो एंगल है इट विल बी 90 डिग्री. अगर मैं इस पॉइंट पे लूँगा तो करंट नीचे जा रहा है ना. करंट यहाँ पे नीचे जा रहा है और इसका एक्सेस ये है, तो अगेन आपको ये दिखेगा कि ये 90 डिग्री है. तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, आपको यहाँ पे विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन डी एल एंड एस एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप. इट विल बी 90 डिग्री ओनली. तो एक चीज़ आप मान के चलिए, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, ये क्लैरिटी शायद आ जाए थोड़ा सा, और आप रिपीट करके आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इस पॉइंट में ऐसा है और मेरा पोजीशन वेक्टर का, अगर ये मैं ऐसा करता हूँ तो ये पोजीशन वेक्टर ऐसा है. इसको मैं ऊपर से देखूँगा तो ये 90 डिग्री है. ओके, दिस विल बी द एंगल. ओके, है ना. ये करंट ऐसा बाहर आ रहा है इस पॉइंट में और ये एक्सिस में द पोजीशन वेक्टर है एस. मैं इसको ऊपर से देखता हूँ तो इट विल बी 90 डिग्री. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब मैं ये क्या करता हूँ कि ये जो एंगल है इसको मैं बोलता हूँ फाई. ओके, नाउ डी एल और एस के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है. यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा. मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी अगेन 90 डिग्री विथ दिस एस, है ना. ये जो एस है इसके 90 डिग्री में होगा. ओके, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ डी एल एंड एस. ये दोनों के प्लेन से ये परपेंडिकुलर होगा और ये डायरेक्शन होगा एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का. सिमिलरली इसके कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसका डायरेक्शन होगा ये. Okay, now this is not acting in a horizontal and और वर्टिकल डायरेक्शन, यानी इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करेगा. तो सपोज मैं इसका दो कंपोनेंट बनाता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाता हूँ और एक वर्टिकल कंपोनेंट बनाता हूँ. ओके, तो मुझे अगर ये एंगल मिल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इसका एंगल क्या है. ओके, बट फिर से बनाते हैं इसको.
ठीक है। सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डी बी, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई होगा। ओके, दिस इज़ 90 डिग्री एंड दिस इज़ ऑल्सो 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर इसका परपेंडिकुलर ये है तो दिस विल बी एंगल फाई। ओके, सिमिलरली हम नीचे भी अगर ऐसा करें इसको, तो दिस विल बी फाई। ओके, तो दिस विल बी डी बी कॉस फाई, इधर भी डी बी कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी बी साइन फाई, दूसरे वाले का भी डी बी साइन फाई, दोनों डायरेक्शन में। अब थोड़ा गौर से देखेंगे तो ये डी बी कॉस फाई यानी जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं डायमेट्रिकली। अगर हम देखते हैं एलिमेंट्स को, दो डीएल एलिमेंट्स लिए, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट जो साइन वाला कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस साइन कंपोनेंट। ओके, है ना, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली बिकॉज ऑफ द साइन कंपोनेंट एंड कॉस कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहा है। ओके, अब इतना समझ गए। सो वी हैव अंडरस्टूड विच कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल कंट्रीब्यूट फॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें हमको ये समझ में आ गया कि सिर्फ डी बी साइन थीटा विच इज़ अलॉन्ग द एक्सेस ऑफ द सर्कुलर लूप, दिस इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड, और जो उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं डी बी कॉस फाई डायमेट्रिकली एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो अब हम इसमें बायो-सेवर्ट्स लॉ लगा के फिर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो समझते हैं, है ना। अगेन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज कंट्रीब्यूटेड बाय डी बी साइन फाई। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? डी बी साइन फाई, क्योंकि डी बी कॉस फाई तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो अगर डायमेट्रिकली अपोजिट दो एलिमेंट लेते हैं तो द कंट्रीब्यूशन विल बी ओनली बिकॉज ऑफ डी बी साइन फाई। तो अभी अपन बायो-सेवर्ट लॉ लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ, है ना, स्मॉल डी एन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन दिस डिस्टेंस एस स्क्वायर। ओके, आई डी एल साइन थीटा अपॉन एस स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। ओके, नाउ अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम इस ट्रायंगल में ओ पी क्यू में। ओ पी क्यू में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमको एस की वैल्यू और साइन फाई की वैल्यू मिल जाएगी। हमको एस की वैल्यू भी मिल जाएगी और साइन फाई की वैल्यू, है ना। सो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, according to Pythagoras theorem, s square is equal to a square plus r square, a square plus r square, यानी s is equal to अंडर रूट a square plus r square, तो इसको a square plus r square to the power 1/2 लिख देता हूँ मैं। ओके, आगे ये ऐसे ही काम आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया s। अच्छा, साइन फाई ये कैसे निकलेगा? साइन फाई विल बी परपेंडिकुलर a अपॉन हाइपोटेन्यूस s, तो साइन फाई इज इक्वल टू a अपॉन s। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको आगे काम आएगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सियल कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण है? एक्सियल कंपोनेंट के साथ। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये अभी इस DL के लिए लिया था, यहाँ पे भी और अलग अलग करंट एलिमेंट लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? DB साइन फाई। किसका इंटीग्रेट करूँगा मैं? DB साइन फाई को इंटीग्रेट करूँगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट के कारण आ रहा है
और इसके जो वर्टिकल टू एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ओके, तो इंटीग्रेट करना मुझे डी बी साइन फाई, तो उससे पहले मैं इसमें इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, हमको यहाँ से पता है डी बी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन एस स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखेंगे क्या क्या कांस्टेंट है। म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा, और डिस्टेंस s, क्या ये डिस्टेंस s कांस्टेंट है? ये एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर, क्योंकि ये एक्सिस में है तो ये s तो सभी जगह पे वो सेम ही रहेगा, तो s इज़ ऑल्सो कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ b और सारे कांस्टेंट को बाहर निकालता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एस स्क्वायर, और साइन फाई की वैल्यू तो मैंने डाली ही नहीं यहाँ पे, साइन फाई की वैल्यू भी है ना, साइन फाई क्या है, ए अपॉन एस, ए अपॉन एस, तो ये हो जाएगा एस क्यूब, और ये रेडियस है, ये सर्कुलर लूप का रेडियस है, तो वो भी कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। और बचा क्या सिर्फ अंदर में डी एल, क्या बचा सिर्फ डी एल, एंड डी एल अगर सारे करंट एलिमेंट को मैं अगर जोड़ता हूँ तो इट विल गिव मी द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कुलर लूप। तो डी एल विल बी, अगर इसका इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 पाई ए, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, ये निकला इंटीग्रेट होके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ए अपॉन एस क्यूब, और इंटू डी एल हो जाएगा 2 पाई ए, डी एल क्या हो गया 2 पाई ए। सो 2 से ये 4 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, ये स्क्वायर हो गया और एस क्यूब हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट अपॉन 2, करंट है आई ए स्क्वायर अपॉन एस क्यूब, है ना। अभी एस की वैल्यू हम इधर से ये निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इट विल बी म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू 3, यानी 3/2, एंड दिस is the formula for magnetic field। अब देखने से तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा लग रहा है, इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए आपको वो जो मैंने पहले जो एट द सेंटर वाला है वो आता है कि नहीं वो देख लेंगे, तो उससे आपको फिर ये याद हो जाएगा। ओके, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। केस वन हम जो लेते हैं, केस वन ये लेते हैं कि भैया जो आर है, ये जो डिस्टेंस आर है इज इक्वल टू 0, यानी ये सेंटर से जो इतना दूर आगे है वो वहाँ ना होके सिर्फ सेंटर में आ जाए, तो आर इज इक्वल टू 0 करते हैं। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको डिड्यूस किया था एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, ये सेम आ गया, तो ये फॉर्मूला सही है। तो अगर मैं आर स्क्वायर को 0 करता हूँ तो क्या होगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई इंटू ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये 2 कट, और ये ए क्यूब है और ये ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर कट और नीचे एक ए बच जाएगा, तो दैट विल बी b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए, और यही फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, ये था। तो दिस इज करेक्ट। ओके, अब सेकेंड केस ये लेते हैं कि भाई दिस डिस्टेंस r इज मच ग्रेटर देन a से बहुत कहीं ज़्यादा बड़ा है, तब क्या होगा, तब मैं जो a है उसका रेडियस है उसको इग्नोर कर दूंगा,
है ना। तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ए जो है, जो डिनोमिनेटर में ए है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो मैंने ए को 0 लिखा, लेकिन ऊपर वाला ए तो बना रहेगा। तो देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल, तो आर क्यूब हो गया। तो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ओके, ये केस बहुत कम देखने को मिलेगा। ये केस काफ़ी सवालों में पूछा जाता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, बिकॉज एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप व्हाट यू कैन फाइंड इज magnetic field is proportional to 1 upon A. Magnetic field is proportional to 1 upon A. Yeah, magnetic field is inversely proportional to the radius of the circular loop, है ना। सर्कुलर लूप एट द सेंटर में, अगर ये सेंटर में है, एक सर्कुलर लूप के सेंटर में है, तो क्या होगा B की वैल्यू को क्या होगा, जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ते जाएगा, इसकी रेडियस बढ़ते जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगी। और ये पॉइंट ये है, जितना पास होगा करंट से उतना उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ेगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होते जाएगी। सो हियर B इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A या 1 अपॉन रेडियस, है ना। इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, दिस इज़ अ स्पेशल केस। अगर n लूप है, n नंबर ऑफ कॉयल हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n इससे, सिंपल। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। अब इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ लॉन्ग वायर हैविंग ए सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r carries a current I as shown in the figure. Find the magnetic field ड्यू टू एंटायर वायर एट द पॉइंट O। तो एक वायर है ना, वो एक कंडक्टर है, इट इज़ ऑफ दिस शेप, है ना। देयर इज अ स्ट्रेट पोर्शन, देयर इज सेमी सर्कुलर पोर्शन एंड देन अ स्ट्रेट पोर्शन। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्कुलर लूप O, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके लिए हमको ये पता करना है। तो हमको ज़्यादा कुछ इसमें फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, हमको सिंपल बायो-सैवर्ट लॉ पता होना चाहिए। बायो-सैवर्ट लॉ का जो dB है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वो अगर मालूम है तो हम ये कर लेंगे, है ना। तो सपोज़ नाउ अगर यहाँ पे उसको 3 हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट। तो ये अगर मैं इसको मानता हूँ B1, B2 और B3, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, दिस स्ट्रेट कंडक्टर पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट कंडक्टर पार्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर लूप, सेमी सर्कुलर लूप। इसको सर्कुलर नहीं है, सेमी सर्कुलर लूप। तो पहले वाले केस में अगर बोलते हैं कि हमारा बायो-सैवर्ट लॉ क्या बोलता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि इस कंडक्टर का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो कितना है ना, तो वो क्लियर नहीं है। चलो वो क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, बट इसके बीच इस पोजीशन वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ करंट के बीच का एंगल कितना है। एंगल तो यहाँ पे 0 दिख रहा है मुझे, यानी इट इज़ इन द एक्सेस ऑफ द करंट। जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसके एक्सेस से है, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह वो साइन 0 हो जाएगा। और इसके करंट एलिमेंट आइडियल के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो तो उसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि बिकॉज थीटा फॉर B1 इज इक्वल टू 0, सो B1 विल बी इक्वल टू 0, है ना।
इसी एक्सिस में अगर ये पॉइंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर की इस एक्सिस में ये पॉइंट है, तो B1 तो 0 हो गया। सिमिलरली B3 भी सेम, ये जो सेंटर है वो B3 के एक्सिस में है, तो B3 भी 0 हो गया। तो B3 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। अब बचा क्या? इस सेमी सर्कुलर पार्ट बचा, सेमी सर्कुलर पार्ट बचा। अब हम इसको आइदर सीधे फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या फॉर्मूला से हमको नहीं निकालना है, हम उसको बायो-सैवर्ट लॉ को यूज़ करते हैं तो निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 2 I बाई ए, ये पूरे सर्कल का था, तो हाफ सर्कल का क्या होगा? उसका हाफ हो जाएगा, यानी म्यू नॉट अपॉन 4 I बाई आर, यहाँ पे ए नहीं है आर है, I बाई आर ये हो जाएगा। लेकिन उसको एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं, है ना। तो सपोज एक मैं यहाँ पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट DL लेता हूँ, है ना, और DL करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ओके, तो करंट का अगर डायरेक्शन ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन कैसा है? ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट में क्या होगा? ये घूम के आया और ये अंदर गया, इनवर्ड्स, है ना। राइट हैंड देखिए, राइट हैंड थंब रूल, थंब ये करंट का डायरेक्शन है तो इनवर्ड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन क्या होगा? इट विल बी इनवर्ड्स। ये चीज़ हमको पहले समझ में आ गई कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो इनवर्ड्स है, बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड्स है। यहाँ पे भी अगर लेंगे तो उसके कारण भी इनवर्ड्स, और सब जगह इनवर्ड्स ही है। ओके, सो अगर मैं इस फॉर्मूला में वापस से रखता हूँ फॉर B3, तो इट विल बी DL के कारण में DB क्या होगा? DB विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन, एंगल क्या है? एंगल क्या है इसका? इसके रिस्पेक्ट में दिस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन डिस्टेंस विल बी ऑल्सो ऑलवेज R स्क्वायर। ओके, साइन 90 बाई R स्क्वायर। तो DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे पूरे सेमी सर्कुलर लूप के लिए निकालना है, तो B विल बी इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL अपॉन R स्क्वायर। जितने कांस्टेंट बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन होगा सिर्फ DL का। B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ DL। अब यहाँ पे DL की वैल्यू क्या है? इट इज़ हाफ ऑफ 2 पाई R, हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस, तो हाफ ऑफ 2 पाई R यानी क्या हो गया? पाई R। ओके, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर, और DL हो गया पाई R। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, ये R और ये R कैंसिल, तो आंसर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 I by R, which is half of the magnetic field because of full current loop. फुल लूप का आधा हो गया, एंड दिस इज द आंसर। तो आंसर है यस, म्यू नॉट अपॉन 4 I by R। डायरेक्शन ऑफ दिस इज इनवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस कंडक्टर। किधर है डायरेक्शन? इनवर्ड्स। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। वो फॉर्मूला से भी ले सकते हैं, या फिर आप बायो-सैवर्ट लॉ भी लगा सकते हैं, ले सकते हैं। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करते हैं। एक और क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है, NCERT क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। This is what is the direction and magnitude of the magnetic field at the center of the arc। ओके, जो पुराना क्वेश्चन था वो रिपीट हो रहा है, बट इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाया है। ये बोल रहा है, वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वेयर बेंट इन अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन अपोजिट वे एज शोन इन फिगर। ओके, अभी एक
कंडक्टर है जिसको एक सर्कुलर आर्क में बेंड कर दिए हैं और करंट का डायरेक्शन ये इस तरीके से है ना। और इसमें पूछा है कि भाई सेंटर में इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमने अभी निकाला B इज इक्वल टू μ0/4 I/r, ठीक है, I/r ये निकाला था हमने, ठीक है। ये इसका यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस ये आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के बोलते हैं कि भाई अगर इसको मैं ऐसे ना मोड़ के ऐसे मोड़ दूंगा तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा क्या, इसको आपको निकालना है ना। करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है इसमें, एक चीज़ आप देखेंगे कि करंट इज़ फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना, करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं ना। डायरेक्शन किससे मिलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो मैं यहाँ पे इसको अगर मैं अपने थंब को इधर इस डायरेक्शन में करता हूँ तो इसमें दिखता है कि यहाँ से ये करंट, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रहा है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तक जा ही नहीं रहा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रहा है। लेकिन इस सेमी सर्कुलर लूप के कारण में पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और मैं अगर इसको ऐसा रखता हूँ, इस पॉइंट पे रखता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आउटवर्ड्स है, कहीं पे भी इधर पे रखता हूँ तो इट इज़ कमिंग आउटवर्ड्स, कर्ल ऑफ द हैंड इज शोइंग द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इस केस में तो आउटवर्ड्स है, ओके। इस केस में देखता हूँ यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो आ ही नहीं रहा है, तो ये आउटवर्ड्स नहीं है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट में देखता हूँ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐसा है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये थोड़ा सा घूम के वापस से इधर आ रहा है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड्स। तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ पे क्या हो गया, इनवर्ड्स। ओके, हाँ इनवर्ड्स है, यहाँ पे इनवर्ड्स है। तो चेंज क्या हुआ, अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन करंट के लूप के उस साइड चले जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में आउटवर्ड्स है, तो इस केस में इनवर्ड्स है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आई थिंक विल नॉट चेंज। चलो करके देखते हैं, है ना। इस केस में जैसे कि इसमें करंट इस दिया है क्वेश्चन में 12 एम्पियर, करंट इज 12 एम्पियर, व्हाट इज द रेडियस 2 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, 0.02 मीटर, सॉरी कितना हो गया, 0.02 मीटर, ठीक है। और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इस केस में मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4, अब μ0/4 मैं यहाँ पे कर देता हूँ पाई इंटू 12 इंटू पाई अपॉन 0.02, है ना, क्योंकि मुझे μ0/4 की वैल्यू तो याद नहीं है, μ0/4 पाई की वैल्यू याद है, दैट इज 10⁻⁷ इंटू 12 इंटू 3.14 अपॉन 0.02, ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, इसकी वैल्यू आ गई 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। सो द मैग्नीट्यूड अगेन फॉर दिस B इज इक्वल टू μ0/4 I/r, है ना। तो अगर ये 4 है तो ये पाई करूँगा तो ये भी पाई होगा, तो ये हो गया 10⁻⁷ इंटू 12 एम्पियर इंटू 3.14 अपॉन 0.02, अगेन इट विल बी 1.9 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। So value of the magnitude of the magnetic field is not changing, the direction is changing because of the change in the curling of the loop. Okay, hope this is clear to you. Let's do one more question. और ये क्वेश्चन CBSE में पूछा गया था, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करेंगे तो ये आसान है सवाल,
अदरवाइज ऐसे देखने में तो बड़ा मुश्किल लगता है, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर कॉयल हैविंग 100 टर्न्स ऑफ वायर of radius nearly 20 centimeter each lies in the xy plane with its center of the origin of with its center at the origin of coordinates. Find the magnetic field at the point 0 0 20 root 3 centimeter when the coil carries a current of 2 upon pi एम्पियर. ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिया है. क्या क्या दिया है ना? पहला तो जो सर्कुलर कॉयल है जिसमें 100 टर्न्स हैं, है ना, कितने हैं? n इज इक्वल टू 100 है ना, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन में है ना. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको थोड़ा सा चूज़ करना पड़ेगा. एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, अगर इसको x और इसको y बोलता हूँ तो ये प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा. लेकिन डिस्टेंस क्या दिया है? z प्लेन में दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन नहीं मानते हैं. इसको मैं बना देता हूँ कि दिस इज़ z डायरेक्शन, है ना, एंड दिस इज़ एक्स वाई. ओके, तो इसमें एक सर्कुलर कॉयल इस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है. ओके, और इसका सेंटर जो है 0 0 0 में है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 0 0 20 रूट 3. तो 0 x में 0 है, y में 0 है और z में 20 रूट 3 है. तो ये पॉइंट P जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस में है? 20 रूट 3 सेंटीमीटर, है ना. 20 रूट 3, यस 20 रूट 3 सेंटीमीटर में है. ओके, अब तो इसका रेडियस कितना है? रेडियस यानी यहाँ पे हम a लेते हैं, a इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 0.2 मीटर. तो ये जो a है वो 0.2 मीटर है ना. और ये हम जो बोलते हैं इसको अगर ऐसा लें तो दिस इज़ r कितना है? 20 रूट 3 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिख देता हूँ 0.2 रूट 3 मीटर. ठीक है. करंट I, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ये कितना फ्लो हो रहा है? इट इज़ 2 अपॉन पाई एम्पियर. 2 अपॉन पाई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. और लगभग सारी जानकारियाँ हमको मिल गई. n 100 है, a यानी रेडियस है 0.2 मीटर, r कितना है? 0.2 रूट 3 मीटर, और करंट है 2/πa. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था एट द एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. तो दैट इज़ μ0 अपॉन 2 I a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2. और यहाँ पे n भी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे n का. ओके, अब μ0 अपॉन 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमको ये मालूम है कि μ0 अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁷ जो भी यूनिट है उसका. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 पाई से. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 पाई से, और डिवाइड भी कर देते हैं 2 पाई से. ओके, तो ये हो गया 4 पाई, ऊपर में 2 μ0 अपॉन पाई. अब इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं. तो यहाँ पे b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई हो गया 10⁻⁷ इंटू 2 पाई. करंट की वैल्यू है 2 अपॉन पाई, ए की वैल्यू है 0.2 का होल स्क्वायर. ठीक है, ऊपर तो क्लियर हो गया. नीचे 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 रूट 3 का स्क्वायर टू पावर 3/2. ओके, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया. अच्छा, इसमें 100 भी जोड़ना है, n 100 भी है. ओके, तो अब ये हो गया 100 यानी ये प्लस 2, तो ये हो गया 10⁻⁵, 2 2 ज़ार 4, ठीक, इंटू 0.04. ठीक है, 2 स्क्वायर 0.2. अब ये हो गया 0.04 प्लस
0.2 का स्क्वायर हो गया 0.04 इंटू 3 टू द पावर 3/2, तो हो गया 0.04 इंटू 4। ओके, यहाँ पे मैं इसको यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। 10⁻⁵ इंटू 4 इंटू 0.04 अपॉन 0.04, 4 इंटू 0.04 टू द पावर 3/2। तो बाई 2 करूँगा तो ये इसका रूट 4 और इसका रूट, तो ये हो जाएगा 0.2। ओके, 10⁻⁵ to 4 इंटू 0.04, ये हो गया 2 इंटू 0.2 का क्यूब। तो 2 क्यूब हो गया 8 और 0.2 क्यूब हो गया, नहीं सीधे सीधे करते हैं ना, तो 8 इंटू 0.02 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻⁵ इंटू 4 इंटू 0.04 अपॉन 2 क्यूब हो गया 8 इंटू 0.04 इंटू 0.2, 0.4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 8 इंटू 0.2 हो गया, 8 2 16, 1.6। ठीक है, या फिर मैं इसको 4 1 4 2 ज़र करता हूँ, तो ये 0.4 हो गया, ये हो गया 1/0.4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। 1/0.4 यानी 25 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। आंसर देख लें। नहीं 2.5, सॉरी 2.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 25 माइक्रो टेस्ला, एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, वही बोला, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, and this is how we have to continue. Okay, so I'll stop at this point, and in the next class we'll study Ampere's circuit law. Thank you.